Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your tutor Manisha Gupta ACCA. So I am again back with a new question. Again, this is from the performance measurement and control topic of PM. So yesterday I again get a comment from one of my student that he wants me to solve this question, Man Company, which was asked in June 2016 attempt. So here is a video. So I hope those of you who are struggling to solve this question, so you will struggle no more from today onwards. So I hope this video will be useful. So please watch this video till end. Okay, so as I said in the previous video as well, while solving the long question, you should first read the requirement. Why? Because reading the requirement, you will have a rough idea what the question is asking, and your mind will train accordingly to look the information related to the same in the scenario provided. Right, so here again this question is for the 15 marks and there is 3 requirement. In the first requirement, question is asking you to calculate the incremental profit slash loss per component for the group if division M accept the new suppliers offer and recommend how many component division L should sell division M if profit are to be maximized. All right, this is for the 3 marks only. Now in the part B, they are asking using the quantity calculated in the A and current transfer price, calculate the total annual profit of each division and the group as a whole. All right, so this is for the 6 marks. And in the part C, discuss the problem which will arise if the transfer price remain unchanged and advise the division on the suitable alternative transfer price for the component L. See, the question is there is 3 requirement, 3, 6, 6 marks. But you should read the requirement 2 times. Why? Because कभी कभी क्या होता है ना, वो एक पैराग्राफ में there might be 1 or 2 things that we need to do और वो suddenly कभी कभी मिस हो जाती है. So जैसे कि इस क्वेश्चन में देखेंगे पार्ट ए वाले में, the question is asking you to calculate the incremental profit or slash loss per component. ठीक है, एक आपका कैलकुलेशन का पार्ट है, so यहाँ पे कैलकुलेट करना है. बट यहाँ पे आप देखोगे एंड लगा हुआ है एंड दे ऑल्सो आस्क यू टू रिकमेंड हाउ मेनी कंपोनेंट दैट डिवीजन एल शुड ट्रांसफर डिवीजन एम. ठीक है, यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट है. सिमिलरली फॉर द बी आपको बोला यूजिंग द क्वांटिटीज कैलकुलेटेड इन द ए, जो क्वांटिटी आपने कैलकुलेट किया एंड द करंट ट्रांसफर प्राइस, कैलकुलेट द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ ईच डिवीजन एंड द ग्रुप. अगर आप मान लो मिस्टेक से इस डिवीजन का निकाल के ग्रुप का नहीं निकालते हो, इन दैट केस यू विल लूज द मार्क्स विच वेर एलोकेटेड फॉर द ग्रुप डिवीजन के लिए, आई मीन एज अ ग्रुप के लिए. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर सिर्फ आप कैलकुलेशन के पार्ट करते हो, इफ यू डोंट रिकमेंड द एट हाउ मेनी quantities or component that division L should transfer, again you will lose mark which were allocated for this part of the requirement. So इसीलिए रिक्वायरमेंट को 1 से 2 बार पढ़ो. इफ देर इज 1 or 2 more than 1 things has been asked, हाईलाइट कर लो सो दैट यू विल बी लाइक ऑन द ट्रैक. अदरवाइज क्या होता है, पढ़ने के बाद भी लास्ट में भूल जाते हैं हम लोग, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम टिक 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 कर रहा होता है स्क्रीन पे. इट्स वेरी नेचुरल कि आप पढ़ें कि हाँ 2 चीज पूछा हुआ है, बट एट द एंड यू ओनली परफॉर्म 1 कैलकुलेशन, अदर पार्ट दिमाग से मिस हो सकता है. सो इट्स बेटर टू हाईलाइट. अगर आप पार्ट सी में भी देखोगे, दे अगेन आस्क द 2 थिंग्स. फर्स्ट डिस्कस द प्रॉब्लम, जिस अगर ट्रांसफर प्राइस अनचेंज रहा उसमें क्या दिक्कत आ सकती है. एंड अगेन दे अटैच द वर्ड एंड ऑल्सो आस्क यू टू एडवाइज द डिवीजन ए सुइटेबल ऑल्टरनेटिव ट्रांसफर प्राइस फॉर द कंपोनेंट. अब देखो रिक्वायरमेंट 3 है, बट 3 में एक में 2 है, 2 चीज पूछा हुआ है. जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट भी करना है, रिकमेंड भी करना है. सिमिलरली पार्ट बी में आपको कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे डिवीजन के लिए भी, बट एज ए होल ग्रुप के लिए भी.
ठीक है। एंड अगेन इन द पार्ट सी में आपको प्रॉब्लम डिस्कस करना है एंड द प्राइस एडवाइस करना है जिस पे ट्रांसफर करना सही रहेगा। सो मैंने हाईलाइट कर लिया सो दैट आई विल नॉट मिस दैट पार्ट व्हाइल परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन और सॉल्विंग द रिक्वायरमेंट। दूसरा चीज क्या मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, after reading the requirement they suddenly start performing the calculation but which is not the correct. why? आपको यहाँ पे हेडिंग देना होगा, आप किस क्वेश्चन का पार्ट कर रहे हो, अदरवाइज जस्ट मेंशन द व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ये जरूरी है। ये अगर आप मिक्स करोगे तो एग्जामिनर को आइडेंटिफाई करना इट विल बी वेरी हार्ड। व्हाई? बिकॉज अब मिक्स करके लिखोगे तो हाउ ही विल अंडरस्टैंड, ही और शी विल अंडरस्टैंड कि किस पार्ट का आपने आंसर किया है किस पार्ट का नहीं, है ना। सो ट्राई टू रिड्यूस द वर्कलोड, जो उसका मतलब होता है ना कि उसका मेहनत ज़्यादा ना लगे, इजीली वो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए विच ही और सी इज लुकिंग एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ट्राई टू मेक द वर्क इजियर फॉर हिम और हर, ठीक है। सो वापस से हम लोग बैकग्राउंड पढ़ते हैं। अभी तो हमने सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ा है, सो बैकग्राउंड भी पढ़ते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे मैन कंपनी, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम मैन कंपनी है, it has a two, तो कंपनी हैव ए टू डिवीजन, डिवीजन एल एंड डिवीजन एम, ठीक है। सो मैं एक रफली डायग्राम भी ड्रॉ करती हूँ सो दैट वी कैन लिंक द थिंग्स। सो मैन कंपनी है, ठीक है, एंड मैन कंपनी का आपका दो डिवीजन है, राइट। सो वन इज, लेट मी एड द शेप, okay, so man company have a two division, okay, so division क्या है हमारा, एक डिवीजन एल एंड अदर वन इज डिवीजन एम, ठीक है। सो बोथ डिवीजन मेक ए सिंगल स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, डिवीजन, okay, division L make a component L which is supplied both division M and external customer. So basically जो ये division है, division L, ये एक component बना रही है and component का नाम है L, okay, और ये L को है ना, ये एक मिनट हम इसको डायग्राम बनाती हूँ, ओके। तो ये डिवीजन बनाती है हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट L, और ये इसके पास ये जो प्रोडक्ट है कंपोनेंट एल, इसको ये बाहर भी बेचती है और मतलब इंटरनली डिवीजन एम को भी बेच रही है ये, ठीक है। सो अगेन वी हैव इट टू एरो। मैं ये डायग्राम इसलिए बना रही हूँ सो दैट कि आपको एक रफ पिक्चर दिमाग में बैठे, ठीक है, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ये चीज कर रही हूँ। तो ये डिवीजन एम को भी बेच रही है एंड डिवीजन, सॉरी, एक्सटर्नली बेच रही है, एक्सटर्नल भी बेच रही है, ठीक है। सो ये आपका एल के लिए हो गया एंड ये बोला गया है डिवीजन एम मेक्स प्रोडक्ट एम। सो डिविडेंड जो ये डिवीजन एम है ये प्रोडक्ट एम बनाती है। तो मैं ये एरो को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ वापस से, ओके, एंड यहाँ पे मैं इसका नाम देती हूँ, ये क्या बना रही है हमारा प्रोडक्ट एम। तो ये बनाती है हमारा प्रोडक्ट एम, ऑलराइट। तो यूजिंग द वन कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट एल एंड द अदर मटेरियल, मतलब अगर डिवीजन एल एम को सप्लाई कर रहा है तो डिवीजन एम जो फाइनल प्रोडक्ट बना रही है उसमें कंपोनेंट एल एक ही यूज हो रहा है, ये भी एक ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। सो ओनली वन कंपोनेंट इज बीइंग यूज्ड व्हाइल मेकिंग द फिनिश प्रोडक्ट एम, ठीक है। सो उसके बाद में बोला गया है, ओके, इट देन सेल्स द कंप्लीटेड प्रोडक्ट टू द एक्सटर्नल कस्टमर। अब इसके बाद ये जो एम वाले डिवीजन है, जो फाइनल प्रोडक्ट उसने बनाया, इसको वो डायरेक्टली एक्सटर्नल कस्टमर को बेच रही है इसके बाद, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे, to date division M has bought component L from division L। so जो ये component L चाहिए होता है division M को, ये अभी तक इससे खरीद रही थी division L से।
सो ये कंपोनेंट एल जो है यहाँ पे इसमें यूज हुआ था, कितना यूज हुआ है? ओनली 1, ठीक है। और अभी तक डिवीजन एम एल से खरीदते आ रही थी। सो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है दोनों कंपोनेंट के लिए, कंपोनेंट एल एंड द प्रोडक्ट एम के लिए, कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, कंपोनेंट एल। ये कंपोनेंट एल जो लिखा हुआ है ना, सो कंपोनेंट एल यहाँ पे देखो कि जो एल का सेलिंग प्राइस है वही एम के लिए कॉस्ट होगा, क्योंकि इसी प्राइस पे वो खरीदती थी फ्रॉम द डिवीजन एल। उसके बाद सारा कॉस्ट दिया, दैट्स फाइन। वी हैव ए अदर डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बिफोर फिक्स कॉस्ट, एज वेल एनुअल फिक्स कॉस्ट, और हमारा एक्सटर्नल डिमांड भी दिया, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट भी दिया, ठीक है। Now division L charges the same price for the component L to the board division M and the external customer। मतलब अगर division L जो M को बेच रही है और या फिर बाहर कस्टमर को बेच रही है, दोनों के लिए सेम प्राइस चार्ज कर रहा है, ठीक है। एंड however it does not incur the selling and distribution cost while transferring internally। अब इसका मतलब क्या ये कह रहा है, जो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है ये किस केस में लगेगा? जब हम गुड्स बाहर के कस्टमर को बेचेंगे। बट अगर हम लोग विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द डिवीजन बेच रहे हैं, उस टाइम में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंकर नहीं होगा, इट विल बी सेव्ड। सो ये क्वेश्चन कह रहा है अगर डिवीजन एल एम को बेच रही है तो उस केस में ये जो 4 लग रहा है ना एल को, ये बचेगी। किसके केस में? एल के केस में, ठीक है। डिवीजन एम हैज जस्ट अप्रोच्ड बाय ए न्यू सप्लायर हु हैज ऑफर्ड टू सप्लाई इट विद द कंपोनेंट एल 437 पर यूनिट। अब डिवीजन एम ने क्या किया, एक सप्लायर के पास गया और सप्लायर ने ये जो कंपोनेंट एल था जो एम एल से खरीदा था डिवीजन एल से एट द कॉस्ट ऑफ 40, अब उसको वो सप्लायर 37 में दे रही है, ठीक है। Prior to this offer, the cheapest price which division M could have been bought component L from the outside the group was 42 per unit. It is the head office policy to let the division operate autonomously without interference at all। मतलब डिवीजन दोनों डिवीजन को हेड ऑफिस से छूट मिली हुई है अपने अपने में एक्ट करने के लिए। समटाइम क्या होता है ना क्वेश्चन में, हेड ऑफिस जो होती है ना वो एक रूल्स, एक पॉलिसी, एक होता है ना कायदा कानून, मतलब इम्प्लीमेंट की होती है कि डिवीजन एल को पहले एम को ही बेचना पड़ेगा अथवा एम को एल से ही खरीदना पड़ेगा, बाहर नहीं खरीद सकते, ऐसा रूल्स होता है। बट यहाँ पे फ्रीली छोड़ दिया है, तुम कुछ भी करो, ठीक है। यहाँ पे फ्रीली छोड़ दिया है दोनों डिवीजन को। बट अभी जो 37 में बाहर मिल रही है तो ऑब्वियसली एम 40 में क्यों खरीदेगी डिवीजन एल से? उसके लिए तो घाटा हो गया ना। डिवीजन का प्रॉफिट के बेसिस में दोनों डिवीजन के मैनेजर को बोनस, परफॉर्मेंस जो भी इंसेंटिव वगैरह आएगा। बट अगर वो महंगा पे खरीदेगा तो उसका प्रॉफिट तो कम हो गया। Maybe he or she will not be eligible for the bonus and any other incentives, right? So वो तो obviously चाहेगी कि मैं बाहर से खरीदूं। और इससे पहले अभी जितने उसने मार्केट में पता लगाया था उसको चीपेस्ट प्राइस अभी तक का मिला हुआ 42 था। अब हो सकता है इसी वजह से वो 40 में डिवीजन एल से खरीद रहा था, बट उससे भी तो नीचे देने वाला आ गया ना, राइट। सो अब यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रही है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो पढ़ोगे, कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस पर कंपोनेंट, नॉट इन द टोटल, पर कंपोनेंट फॉर द ग्रुप, अगेन ग्रुप के लिए, इफ डिवीजन एम एक्सेप्ट द न्यू सप्लायर ऑफर विच इज 37, ठीक है। ये अगर ये चूज करती है तो कंपनी का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस क्या है पर कंपोनेंट वाइज। एंड अगेन आपको रिकमेंड करना है कि कितनी यूनिट ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना, डिवीजन एल को एम के लिए, ठीक है, सो दैट की ग्रुप का प्रॉफिट मैक्सिमाइज है। सो ये तो था, ये हमारा चार्ट जस्ट आई वाज मेड फॉर द टू मेक ए क्लियर पिक्चर। अब हम लोग रिक्वायरमेंट पे आते हैं, जो मेन और गोल जो मार्क्स स्कोरिंग एरिया है। तो ये 3 मार्क्स के लिए। तो रिक्वायरमेंट ए में पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, ये इसी क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। ओके, सो ये हमारा रिक्वायरमेंट हो गया फर्स्ट पार्ट। तो अगर अभी की बात किया जाए, दोनों डिवीजन कंट्रीब्यूशन कितने कितने कमा रही है? कंपोनेंट एल बेच के हमारा डिवीजन एल 16 पर कंपोनेंट कमा रही है एज अ कंट्रीब्यूशन, वेयर एज प्रोडक्ट एम की बात की जाए तो 26 पर कंपोनेंट, राइट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो अगर डिवीजन
M बाहर से खरीदती है, दैट इज न्यू सप्लायर ऑफर ऑफ 37, उससे उसका कंपोनेंट कंट्रीब्यूशन कितने से इंक्रीज करेगा? तो इंक्रीमेंट इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ डिवीजन M। अभी वो 26 कमा रही थी, अगर वो बाहर से खरीदती है, इन दैट केस उसका कंट्रीब्यूशन 3 से इंक्रीज करेगा, राइट? क्यों? क्योंकि अभी तक वो कंपोनेंट एल के लिए 40 पे करे थी, बट अब बाहर में 37 अवेलेबल, 37 पे करेगी, सो डिफरेंस इज ऑफ 3। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे फॉर डिवीजन ये एम की बात करूं तो। अब ये एम की बात हो रही है, अब डिवीजन एल के लिए तो कुछ ना कुछ कॉस्ट इंकर तो हुआ होगा। एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका एक्सटर्नल डिमांड लोअर एज कंपेयर टू कैपेसिटी। अब कंपनी जो भी डिवीजन एल है वो तो बेच के कमा रही थी, राइट? बाहर से उसको बेचा डिवीजन एम को, वहां से वो अर्न करी थी, बट अर्न कितना करी थी डिवीजन एम को बेच के? सो इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 40, नहीं, सेलिंग प्राइस 40 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 2 एंड इट विल गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20। कैसे 4 क्यों नहीं लिया? बिकॉज अगर मैं इंटरनल ट्रांसफर कर रही हूँ, इन दैट केस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंकर नहीं होगा मेरा, राइट? सो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंकर नहीं होगा, उस केस में ये 4 सेव हो जाएगी। बट जो मैं कंट्रीब्यूशन कितने कमा रही थी डिवीजन एम को बेच के, 20 का। कैसे? 40 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 2 अभी मैं करूंगी। सो अब ये कंट्रीब्यूशन में नहीं कमाऊंगी, लूज कर दूंगी। सो लॉस्ट contribution from division M to division L, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, क्योंकि लॉस है, और इसको निकालने के लिए 40 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 2 करूंगी, राइट? सो इट विल गिव द लॉस कंट्रीब्यूशन ऑफ 20। ठीक है यहाँ तक? अब देखो नेट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सो नेट में लॉस आ रहा है ऑफ हाउ मच अमाउंट? 17। तो ये दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो अगर न्यू सप्लायर के ऑफर को डिवीजन एम एक्सेप्ट करता है, इन दैट केस कंपनी विल हैव ए लॉस इन ओवरऑल एज अ ग्रुप एज अ होल 17 पर कंपोनेंट लॉस होगी। ठीक है? सो आई विल राइट डाउन पर कंपोनेंट एज वेल हियर, component. All right? Okay. Now next part क्या था हमारा? रिकमेंडेशन करना, राइट? सो रिकमेंडेशन, हाउ मेनी कंपोनेंट द डिवीजन एल शुड ट्रांसफर टू डिवीजन एम। ठीक है? This one is in dollars, so I will put a dollar sign. ठीक है? इसको मैं एज अ ब्रैकेट में लिखूंगी टू लुक मोर बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है? ब्रैकेट के लिए आई थिंक दिस वन, या नाउ इट्स परफेक्ट। ओके, ठीक है? ये बोल्ड कर दूंगी, विच इज आवर कैलकुलेशन आर्क्स इन द रिक्वायरमेंट। नाउ इट्स टाइम टू रिकमेंड। अब देखो इसमें इसके सजेशन के लिए पहले सुन लो। डिवीजन एल का टोटल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 300,000, but external demand is 160 only. So how much is the spare capacity? It's a 140,000, right? So but प्रोडक्ट एम को कितना चाहिए? ओनली 120। सो कितना ट्रांसफर करना चाहिए कंपोनेंट? इट्स 120,000। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट एल का ओवरऑल स्पेयर कैपेसिटी इज अबाउट 140,000। अब उसमें से भी एम का external demand is only 120,000, so that's why 120,000 should be transferred by division L to M. ठीक है? So part B we will write something like part A का second requirement we will write something like this. Okay, so division L का capacity is 300,000 unit, and for external demand for the L component L it's only 160,000 units. Again this will give this spare capacity of 140,000, and it's how
it's something like this, 300,000 minus 160,000. ठीक है, division M requires 120,000 only. So since else has enough capacity to supply M without sacrificing the external sales, so it should sell all 120,000 units to M internally at a group level in order to maximize the profit. So this is how you can approach to this requirement. Okay, now it's time to move toward the requirement B. Requirement B. And in requirement B, question is asking to calculate the both profit for the each division as well as group in a whole. Okay, so let's do it. So we have a two division, L and M. Okay, and I will just add one more column for total. Okay, so we have a total figure of this much. So now I will directly move to the contribution part. Contribution, we have, if we talk about internal contribution, how much unit is sold by the L2M? It's 120,000, right? Now you might be thinking how I decided that कि internally बेचा गया है, because question में खुद mention किया गया है, जो based on the calculation आपने A में perform किया regarding the price as well as जो quantity बेचना है यहाँ पे using the quantity जो आपने decide किया कि 120 जो आपको लेना है, इन सब के बेसिस में हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. सो क्वेश्चन आई मीन रिक्वायरमेंट बी इटसेल्फ मेक दिस थिंग्स क्लियर. ओके, सो इंटरनली अगर मैं बेच रही हूँ, एल कितना कमाएगा, एल कितना में बेचेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कंट्रीब्यूशन कितना कमाएगा इफ डिवीजन एल इज सेलिंग टू डिवीजन एम. सो कंट्रीब्यूशन 16 है, बट अगर एम को बेच रहा है उस केस में दिस 4 विल बी सेव्ड. सो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 16 प्लस 4 which will give the contribution in overall 20. कितने यूनिट बेचा हम लोग ने 1 से 20. सो अब एक्सटर्नल की बात करूं, एक्सटर्नल में कितना बेचूंगा मैं 160,000. अब 160,000 यूनिट्स के लिए ऑब्वियसली वी विल अर्न द कंट्रीब्यूशन ऑफ 16 क्योंकि उस केस में तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एनी हाउ इंकर होगा ना. ठीक है, सो 160,000. So I will repeat one more time. इंटरनल हम लोग ने 120,000 बेच रहे हैं टू डिवीजन एम, बट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना अर्न करेंगे हम लोग 16 प्लस 4. ठीक है, 16 प्लस 4. वाई प्लस 4? बिकॉज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट है हम लोग इंटरनल सेल में इंकर नहीं करेंगे, बट यही अगर एक्सटर्नल सेल हो रहे इन दैट केस वी विल इंकर दिस कॉस्ट. सो इसलिए मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 20 लिया एंड नीचे वाले केस में ओनली 16. ऑल राइट, सो नाउ डिवीजन एम की बात करती हूँ. डिवीजन एम बाहर बेचेगा सीधा सीधा. सो 96 उसका सेलिंग प्राइस एंड इसका टोटल यूनिट कितना है 120,000 ओनली. तो इस केस में इसका रेवेन्यू, अगर बात करें रेवेन्यू की, इट्स 150 1 million 11 million, yeah 11 million 11.52 we can say like that. Okay, $11,520,000. All right. Okay, so ये हो गया सेल्स का पार्ट. ऑल राइट, एंड कंट्रीब्यूशन का पार्ट. सो नाउ टोटल कंट्रीब्यूशन वी हैव ऑन हियर. वी कंट्रीब्यूशन छोड़ते हैं, डायरेक्टली हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. जस्ट वेट, हाँ, लेट्स फिक्स कॉस्ट एंड विच इज 500,000 हियर एंड यहाँ पे 200,000. ठीक है, okay, so this will give us the profit of how many? Okay, so यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा,
Okay, let's put this here. एक मिस्टेक किया मैंने, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ले लिया। आई थिंक यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन द कंट्रीब्यूशन हियर, राइट? तो 26 नाइस, परफेक्ट। या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी फ्लो में। तो हम लोग डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन लिया है हम दोनों ने, आई मीन मैंने। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिया डायरेक्टली दोनों का, दोनों डिवीजन का, देन उसमें से फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करके आई हैव जस्ट डायरेक्टली कैलकुलेटेड द प्रॉफिट। सो जो जो आया मेरा डिवीजन वाइज भी आ गया एंड इन द टोटल एज ए होल ग्रुप के लिए भी आ गया, जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है? ओके, सो देन ये पार्ट बी ऑल्सो डन। नाउ पार्ट सी की बात करते हैं। डिस्कस द प्रॉब्लम विच विल अराइज इफ ए ट्रांसफर प्राइस रिमेन अनचेंज एंड एडवाइज द डिवीजन ऑन ए सुइटेबल ऑल्टरनेटिव ट्रांसफर प्राइस फॉर द कंपोनेंट एल। ठीक है, सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट सी, तो फर्स्ट में प्रॉब्लम की बात किया गया है, सो वी विल डू दिस फर्स्ट। ठीक है, प्रॉब्लम विच विल अराइज इफ ट्रांसफर प्राइस रिमेन अनचेंज। What I have written here, अभी हमारा currently transfer price is 40। ठीक है, अगर डिवीजन एम एज सेड इन द रिक्वायरमेंट की नया सप्लायर आया हुआ है मार्केट में, जो डिवीजन एम को वो कंपोनेंट 37 में दे रहा है। अगर डिवीजन एम उस एक्सटर्नल सप्लायर से वो कंपोनेंट खरीदता है, इन दैट केस क्या हुआ था हमारा ओवरऑल ग्रुप में कितना लॉस आया था 17 का, एज वी हैव डन दिस कैलकुलेशन इन द पार्ट ए। ठीक है, बट इससे क्या इंडिकेट किया? गोल इनकॉन्ग्रुएंस। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द गोल कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, डिवीजन का भी भला हो, एज अ होल कंपनी का भी भला हो। बट वो 37 प्राइस पे अगर वो बाहर से खरीद रहा है, बाहर एक्सटर्नल सप्लायर से खरीद रहा है, इन दैट केस दिस विल क्रिएट ए गोल इनकॉन्ग्रुएंस इन द मैन को कंपनी। ठीक है, क्योंकि जो एम है वो अपना फायदा देखा, वो ₹3 बचाने के लिए, $3 बचाने के लिए उसने बाहर से खरीदा, बट ओवरऑल कंपनी को 17 का घाटा हुआ। क्यों? क्योंकि डिवीजन एल का जो कैपेसिटी है इट्स 300,000, उसमें से उसका एक्सटर्नल डिमांड देखा जाए तो इट्स ओनली 160। सो देर इज स्टिल अनयूज कैपेसिटी कितना है इसका यहाँ पे, और वी कैन से स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 140,000 विच कैन बी यूटिलाइज। अब बट एम को कितना चाहिए? इट्स ओनली 120,000। सो कंपोनेंट एल, जो डिवीजन एल है, वो इसको आई मीन वो स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज करके एम को दे सकता है, राइट? सो ऐसे आप लिख सकते हो, अगर क्या बोलते हैं, डिवीजन एम बाहर से खरीदता है, इन दैट केस इट विल लुक लाइक दैट द एम इज एक्टिंग इन इट्स ओन इंटरेस्ट rather than फॉर द ग्रुप एज ए होल। उस केस में उसका लॉस कितना होगा? 17 का होगा, राइट? एंड ये केस में क्या होगा कि हमारा डिवीजन एल का जो अनयूटिलाइज और वी कैन से स्पेयर कैपेसिटी है वो अनयूटिलाइज रह जाएगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा? वेस्टेज होगा, लाइक कि ग्रुप रिसोर्सेज का वेस्टेज हुआ। और डिवीजन वाइज परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो डिवीजन एल हो सकता है कि अच्छा दिखे और डिवीजन एम इन द फ्यूचर वर्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? सब ऑप्टिमल डिसीजन हो रहा है, जिससे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग अब इसमें क्या होगा कि अभी बाहर 37 में हो रहा है, तो डिवीजन एल एंड एम दे कैन जस्ट compromise a few things and just decide the price, and this will adjust the price. Why? Because to promote the goal congress or to avoid the suboptimal decision. So this way you can write for this part. And next part क्या था हमारा? To advise that at which transfer price should the component L be transferred to division M. रिक्वायरमेंट हमारा हुआ। Okay.
See, to advise the price which should be best, like अगर डिवीजन एम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसके लिए अभी जो बेस्ट प्राइस होगा वो एक्सटर्नल प्राइस विच इज ऑफर्ड बाय द न्यू सप्लायर विच इज 37, ठीक है, ये 37 होगा। बट अगर हम लोग एल के पर्सपेक्टिव से देखें उसके लिए जो ट्रांसफर प्राइस होगा इट विल बी लॉस कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। बट यहाँ पे जो कि स्पेयर कैपेसिटी है लॉस कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं आएगी, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। सो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट क्या है 24, बट 24 वेरिएबल कॉस्ट में 4 तो इंकर नहीं हो रहा है बिकॉज इट विल बी सेव अगर वो इंटरनली डिवीजन एम को दे रहा है ये प्रोडक्ट तो। सो ये 4 को ओमिट करेंगे सो आवर वेरिएबल कॉस्ट विल बी 20। सो अब एक रेंज डिसाइड हो रहा है दैट अगर जो सेलर है सेलर अपना वेरिएबल कॉस्ट से नीचे नहीं जाएगी तो उसके लिए मिनिमम प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 20। वो अगर ये सेलिंग डिवीजन इससे नीचे गई तो उसके लिए लॉस हो सकता है। सिमिलरली फॉर द बाइंग डिवीजन उसके लिए जो एक्सटर्नली मार्केट अवेलेबल प्राइस है विच इज 37 वो उससे ऊपर नहीं जाएगी। सो एक रेंज क्रिएट हो गया 20 to 37। अगर इस बीच में कोई भी हम लोग ट्रांसफर प्राइस सेलेक्ट करते हैं इट वुड मैक्सिमाइज द ग्रुप प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चीज भी बुक में लिखा हुआ है, इट्स सेम एज वी हैव डिस्कस राइट नाउ। सो आई होप आपको ये अब क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरीज एंड कंसर्न। थैंक यू सो मच गाइस।